नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको फाइंड आउट करना है, एंड आफ्टर उसके ओपनिंग बैलेंस शीट, एंड आफ्टर दैट द लास्ट इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन related to the exam. Question number 47. First of all, the prepare income and expenditure account for the year 31st March 2020. So, income and expenditure calculate by the previous format. Expenditure amount dr, income amount cr. So, the question is given to rent. Rent amount is 16,800, and additional information is given. The outstanding of beginning and outstanding of end at the end of rent. The end at the end of rent is outstanding is at first of all the outstanding rent at end. एंड की जो आउटस्टैंडिंग है 6,000 रुपीज़, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई है उसको ऐड करेंगे एंड लेस करेंगे इसमें से आउटस्टैंडिंग रेंट इन द बिगिनिंग 6,000 इन दिस क्वेश्चन इज गिवन 16 और 2 6 22,800 and after that 6,000, then the final amount is 6,800. ठीक है, यानी आउटस्टैंडिंग क्वेश्चंस में गिवन है कि 6,000 आउटस्टैंडिंग एट द एंड एंड आउटस्टैंडिंग एट द इन द बिगिनिंग, 6,000 बोथ आर द इक्वल. एंड नेक्स्ट इज टू वेजेस दैट इज द एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन. बेसिस इज 24,500 टू legal charges. The transaction is given 7,200 to lecture fees. Question is 43,500. And office expenses is given is 45,000. And last is transaction to depreciation. Depreciation is book and furniture. Book, and the question is 2 lakh, and additional information is given in this question. The depreciation book, the calculate is book depreciation is 11,300 and furniture is depreciation is 5,000. So total depreciation amount is 16,300. 16,300 amount is total depreciation. And next income side is given by entrance fees. Entrance fees is around 25,000
500 by subscription. In this question, 1,60,000. Same process, outstanding at the end and outstanding in the beginning. So at outstanding at the end outstanding is 4,500. So 1,64,500 less outstanding in beginning 3,500. So balance is 1,61,000. So subscription income by donation amount is 16,500. That is the simple donation, not a specific donation. By profit on entertainment, entertainment profit is 5,600, and by interest acquired on FD, fixed deposit. FD is 80,000, 3% interest 3/100, 6 months. Then the calculate is 1,1200. So finally, income is greater than expenditure. Calculate surplus. Income is 2,09,800. 2,09,800 to surplus income over expenditure. Amount is 56,500. यानी 56,500 surplus is calculated. Answer. And after that, in this question, prepare the opening balance sheet. Calculate the capital fund. So opening balance sheet. Opening balance sheet 1st April 2019. Prepare liability side, amount, assets and amount. लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग जो रेंट दिया हुआ है उसको लाइबिलिटी साइड में लेंगे. आउटस्टैंडिंग रेंट, स्पेंडिंग रेंट, जो रेंट का आउटस्टैंडिंग है वो हमने सबसे पहले लिखा 6,000 लाइबिलिटी साइड. एंड आफ्टर इन दिस क्वेश्चन एडिशनल परचेज जो टोटल एसेट्स थी हमारी वो परचेज की हुई है 2 लाख. इसका हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 11,300. तो वो हमने परचेज बुक की वैल्यू थी क्वेश्चंस के अंदर 2 लाख. एंड फर्नीचर्स की वैल्यू फर्नीचर अमाउंट 85,000. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमने लिया इसमें बिगनिंग, क्योंकि बिगनिंग का ले रहे हैं तो बिगनिंग का इसमें लेंगे. यहाँ पे बिगनिंग का सब्सक्रिप्शन लिया और बिगनिंग का सब्सक्रिप्शन है 3,500. क्वेश्चन में दिया हुआ है
बिगनिंग का सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, 3500। ऐसे हमने बिगनिंग का यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिया है जो रेंट का है 6000, तो उसको भी हमने बिगनिंग का ही लिया है। उसके बाद कैश एट बैंक, हमारे पास कैश इन हैंड भी है और कैश एट बैंक भी, दोनों है। दोनों को मिला के कैश इन हैंड है तो हमारे पास 11,900 और कैश एट बैंक हमारे पास 20,000। बहुत साइड दोनों को मिला के हमारा जो मिलता है वो 31,900, ये हमारा केस का बैलेंस है दोनों साइड। तो इस तरीके से हम जो बैलेंस निकालेंगे वो हमारा कैपिटल फंड निकल के आएगा। इसको यदि हम ऐड करते हैं टोटल साइड, यानी एसेट साइड हमारी ज़्यादा होगी 3,20,400, यानी 3,20,400, ये एसेट साइड इज ग्रेटर देन 3,20,400। एसेट साइड इज ग्रेटर देन लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल फंड। यहाँ पे हम जो निकालेंगे बैलेंस जो कैपिटल फंड में है, कैपिटल फंड तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? एनी डाउट? यू आस्क मी। बैलेंसिंग फिगर में जो कैपिटल फंड आएगा इसको इसमें से लेफ्ट करके, तो 6000 हमें लेफ्ट करना है 3,20,400 में से, तो बैलेंस निकल के आता है 3,40,400, यानी ये हमारा कैपिटल फंड आ गया। और ये कैपिटल फंड हमारा ट्रांसफर होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, यानी इसीलिए हमने इसको आइडेंटिफाई किया है कि हमारे पास कैपिटल फंड कितना है। टोटल एसेट्स जो हमारी थी, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग हो, आउटस्टैंडिंग हमारा कैश का हो, कैश इन हैंड हो, कैश एट बैंक हो, दोनों बिगनिंग का जो कैश होगा वो सारा बैलेंस इधर लिखते हैं, और जो इधर बैलेंस आपका लायबिलिटी साइड का ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास कैपिटल फंड भी हो गया, इनकम भी हो गई, सरप्लस हो गया 56,500 जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आया। अब इसके बाद हमारे पास एक चीज़ और हमें फाइंड आउट करनी है साइंस क्वेश्चन के अंदर, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, क्लोजिंग कैपिटल जो क्लोजिंग हमारी बैलेंस शीट बनेगी, तो इसी के बेस पे अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। फाइनली जो बैलेंस शीट होगी, इस फर्म का जो एसेट्स और लायबिलिटी है वो किस बेसिस पे है, क्या पोजीशन शो करता है। तो क्लोजिंग यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट जो भी कलर है, सपोज दैट ये रॉयल कलर है तो रॉयल कलर यहाँ पे लिख देंगे ऊपर, और यहाँ पे 31 एज ऑन 31 मार्च 2020, यानी ये हम फाइनली बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो फाइनल बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसको देखते हैं, सेम पोजीशन होगी लायबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, इन दैट क्लियर सेम पोजीशन, बट ओनली द ट्रांजेक्शन capital fund is transferred to the liability side in the closing balance sheet. First of all, write down the capital fund. Capital fund amount is 3,40,400. ऐड करेंगे सरप्लस, जितना भी हमारा सरप्लस था वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। सरप्लस हमारा था 56,500 और ऐड करेंगे इसमें मेंबर फीस, जो मेंबर की फीस है वो इसमें ऐड कर देंगे। जितना भी आपका मेंबर फीस होगा, लाइक दैट 25,000 यहाँ पे मेंबर फीस है, तो यहाँ इसको राइट डाउन करेंगे और नोट करके इसको लिख देते हैं। उसके बाद इसमें जो रेंट आउटस्टैंडिंग दिया था इस क्वेश्चन के अंदर, रेंट आउटस्टैंडिंग एट द क्लोजिंग, ठीक है ना, रेंट आउटस्टैंडिंग जो हमारा क्लोजिंग पर एट द एंड की जो हमारे पास थी उसको यहाँ पे लिखी, और उसके बाद यहाँ पे
जो टोटल अमाउंट बैठेगा तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 3,94,000 ठीक है 900। क्लियर? 3,94,900 ये बैलेंस होगा टोटल इस साइड का। 0 0 4 5 9 10 15 यानी यहाँ पे 15 होगा। 3,95,900 10 15 6 2 8 9 and 3। क्लियर? 3,95,900 बैलेंस होगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था एट द एंड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड 6,000 अमाउंट में गिवन है। उसके बाद बुक की वैल्यू थी हमारे पास 2 लाख। इसमें हमने परचेज किया है इसी ईयर में, तो जो परचेज किया है वो इसमें ऐड करेंगे। परचेज हमने किया है 21,300 हमने इसमें परचेज किया है, तो 2,21,300 लेस करेंगे इसमें से डेट। जितना भी हमारा डेट था उसका डेट हमारा 11,300, ठीक है। तो ये डेट इसमें से रिड्यूस करेंगे इसकी वैल्यू को, ये 2,10,000 यानी नेट बुक वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास 2,10,000। उसके बाद फर्नीचर भी हमने परचेज किया था, वो था हमारा 85,000 लेस करेंगे इसमें से डेट 5,000, ये आपका 80,000 नेट आपका फर्नीचर होगा। फर्नीचर की वैल्यू आपकी होगी 80,000। उसके बाद आपने एफडी में पैसा डाला था, क्वेश्चन में गिवन है। एफडी है आपकी 80,000 प्लस इसमें इंटरेस्ट जो आपका दिया था इक्वल 1,200, सो 81,200 आपका ये फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको बोलते हैं एफडी ये होगा। और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस यानी कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस है और कैश एट बैंक, ये तो बैलेंस दिए हुए हैं। कैश इन हैंड आपका 24,200 है, 24,200 है। और आपका कैश एट बैंक जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 2,000। बहुत साइड को हम इसको ऐड करेंगे, दोनों साइड का आंसर आपका इतना आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐड करते हैं, ये 4,01,900 इसकी वैल्यू है। इधर भी ऐड करेंगे तो 4,01,900 ही इसकी वैल्यू आएगी। तो सेम क्वेश्चन होना चाहिए, सेम आंसर होना चाहिए लायबिलिटी साइड भी और आपका एसेट साइड, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। तो ये आप इस तरीके से फाइनली क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। फाइनल क्वेश्चंस में यही आपको दो चीज़ें देखनी है कि सबसे पहले हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हमने पहले ही प्रिपेयर किया है, उसके बाद हमें इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी जिससे हम कैपिटल फंड को कैलकुलेट करते हैं कि कैपिटल फंड हमारे पास कितना आएगा। एंड लास्ट में हमें जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है जो एंड में हम प्रिपेयर करते हैं, जिससे हम फाइनेंशियल पोजीशंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कितना लायबिलिटी और कितना एसेट्स है, तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो भी हमारा लायबिलिटी साइड में जो भी आइटम्स लिखते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन लिखते हैं वो लायबिलिटी साइड में यूज़ की, और जो हम एसेट साइड में यूज़ करते हैं वो हमने एसेट साइड में यूज़ की, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बहुत केयरफुली कंसंट्रेशन से इसको समझेंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। थैंक यू क्लास। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके आपको 48 एंड 49 क्वेश्चंस जो है आपको अपनी नोटबुक में सेल्फ सॉल्व करने हैं। एंड एनी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास। ओके बाय। ले भाई, हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास।
Today we discuss question number 44, class 12, CBSE Commerce. Subject Count. Chapter first. Topic income and expenditure account. Income and expenditure account with balance sheet. आज का जो टॉपिक है टुडेज टॉपिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद बैलेंस शीट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सोल्व द क्वेश्चंस 45. क्वेश्चन नंबर 45 page 64 2021. Question is prepare income and expenditure account. Income and expenditure account for the year 31st March 2020. First of all, prepare the income and expenditure account. Debit side is expenditure amount, income amount, and then debit side and the credit side. Let us go in this question. Additional information in this question given during the year ended 31st March 2020, the club 550 members and each paying on annual subscription rupees 100 rupees. That means is फर्म के अंदर 550 मेंबर्स हैं, प्रत्येक मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन देता है 100 रुपये. एंड सेकेंड एडजस्टमेंट इज गिवन सैलरी आउटस्टैंडिंग एट 1st April 2019 वर रुपीज 10,000 एंड एट 31st March 2020 was outstanding 5,000 in salary. The question is given the salary amount to salary. Salary is given 70,000 and outstanding salary and जो सैलरी दी हुई है वो 5,000 दी है एट 75,000 लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी in beginning salary is given, additional information is 10,000, left is equals to 65,000. Next financial is to insurance is given 33,500 rupees. Then to sundry expenses amount is given 4,700 in this question. After to match expenses in question rupees is 90,000 less
match fund in this question rupees 80,000. So finally match expenses is 10,000 rupees. After that the subscription in this question is income by subscription. Member is additional information is given in this question. 550 member, annual paying the subscription is 100 rupees. So that you will be multiply 550,000 and 55,000 income by the subscription. चंदों के माध्यम से फर्म को 55,000 इनकम होती है. एंड आफ्टर दैट by entrance fees is a income. Entrance fees is income. Rupees is 50,000. After the next transaction is by donation. Not a special donation, is a general donation, is amount 50,000. Next, by locker rent is the income transaction is rupees 4,000. After by profit of sale of furniture, rupees 1 lakh furniture is given, sold is 80,000 is purchased and sale is 1 lakh, so 20,000 amount is profit. And after that by interest on investment, amount is 10,000 plus accrued interest amount 2,000 rupees, so 12,000 is amount of additional information. After calculate income greater than expenditure, so calculate the profit, calculate the surplus of organization. Total amount is income 1,91,000. 1,91,000. Surplus amount is income over expenditure. Is amount is total $3,000, सॉरी यहाँ 500 है, तो उसको नोट डाउन कर लेना. और इस क्वेश्चन की जो अमाउंट है आपको फाइंड आउट करनी है. ये खरीदा बैंक से सरप्लस क्वेश्चन है. इन इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में मिलते हैं. तो ये क्वेश्चंस मार्क मैंने इसलिए किया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, दीज आर द ट्रांजेक्शन इन दिस क्वेश्चंस, देन द सॉल्यूशन इन दिस क्वेश्चन आफ्टर सॉल्यूशन. थैंक यू क्लास.